Good morning, dear students. Today, I think that there is need of some other video, so I have taken a new video for the coordinate geometry. And first of all, I want to inform you that today I will not come live on the YouTube, okay, because there is some work in the school, so we have to go to the school for some important work, okay. So today our schedule is very busy, so we cannot come live, but uh, giving this video having giving this video, I think all the topics you can revise very efficiently, very effectively, so that you can achieve your goal, okay. So this will be very beneficial for you, very helpful to understand the concepts and solve the problems, okay. So let's see here the chapter coordinate geometry, and after this I will take some questions on the line and angles, okay. So the first is the coordinate geometry. Let's see the regarding how it is going. It is going well, okay. 1 minute is consumed during the introduction, okay. Coordinate geometry. In the coordinate geometry, we will take the geometry in the 2 dimension, and we will discuss about the Cartesian plane. Then what is Cartesian plane? Cartesian plane, okay. What is Cartesian plane? It is also known as xy plane, where both this is the x axis and this is the y axis, okay. There are two axes, x axis and y axis. So this plane is 2 dimensional plane, okay, x dimension and y dimension, okay. So this is known as Cartesian plane, or it is simply also known as xy plane, okay. Cartesian plane, xy plane, or it is also known as coordinate plane, okay. Why it is called coordinate plane? Because first of all you have to know that what are the coordinates. Coordinates is the representation of any point on the Cartesian plane. जो ये प्लेन है बेटा, इस पर किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं. सो इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन, okay. In this plane, okay, in the coordinate, what is coordinate? Coordinate is nothing but just the representation of any point, okay, and you write it in this bracket parenthesis. Suppose that a b, so a represent the position of the point on x axis, x axis, and y represent the position of the point on b, represent the position of the point on the y axis, okay. So x एक्सिस पे बेटा पॉइंट आपका रिप्रेजेंटेशन है, और ये y एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. और इनको जब एक साथ लिखते हैं तो ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है. और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम, जो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं बेटा, एब्सिसा. और y एक्सिस वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, okay. And both are in the combined form are known as coordinate, okay. So this is the, so that any point on the Cartesian, suppose that there is a point A, and it is represented by its coordinate like 3, 2. It means what? You will go on the x-axis 1, 2 and 3 point, and on the y-axis 1 and 2 point, okay. Suppose that there is 2 point, so this is the 3, this is the 3, and this is the 3, and this is the 2. So this is the point 3, 2, okay. This is the position of the point, and it is represented by 3 and 2, and 3 is called abscissa, and 2 is called the ordinate,
and 3 2 both combinedly they are called the coordinate. Okay, are you getting the points? Okay, so let's take my duster. This is your Cartesian plane, and we have to know many things about that. In a Cartesian plane, in any axis, the distance between two points is 1 unit. Okay, suppose that you have, this is x axis, this is y axis, 1 2 3 4 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, 1 2 3 4 5, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. Okay, एंड सो वन, आगे भी एंड सो वन कर दीजिएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो वन. नाउ दिस इज योर कोऑर्डिनेट, ये दिस इज द कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन. ओके, और कार्टेशियन प्लेन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू continuous point is 1 unit in everywhere, here or between here or between here or between here, this is 1 unit. Okay, this is the constant and between two continuous points. Okay, now the second one thing is the x-axis. When you go to the right, your right hand on the x-axis, then you will take the positive numbers and above the axis. Okay, on the north side, okay, above the axis you will get the positive numbers on the y-axis. When you have the negative numbers on the y-axis, then you come to the below. Okay, like -1 -2 -3, and in the left side on the x-axis you will come to the left side for the negative points. Okay, this is. And second one thing is that representation of points. Suppose that you have any point 4 and 3. Okay, you have to represent it. Then you have to know the abscissa and ordinate of the. So abscissa is 4, this is for the x-axis, and this 3 is for the y-axis. This is the ordinate. Okay, so go on the x-axis, go to the 4, plus 4. Okay, plus 4, this the x-axis from the 0, this is the 0 0. Here abscissa and ordinate are 0 on the origin. This point is known as origin. Okay, origin. Now represent this 4, 1 2 3 4 on the y-axis. Okay, and 3 on the, this is the on the x-axis and 3 on the y-axis. You have to now go on the y-axis, यानी आपको बेटा ऊपर जाना है. 1 2 3, यानी 1 2 3. This is your point. This is the point 4 3. Okay, here you represented. देखिए y-axis पे 3 काउंट कर लेना, x-axis पे 4 काउंट कर लेना. दोनों को इस तरह से इस पर परपेंडिकुलरली मिला देना. जिस पॉइंट पे मिलेगा वही इसका पॉइंट हो जाएगा. ये रिप्रेजेंट करना आप जानते हैं. लेकिन इस पर बेटा कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. जैसे पिछली बार आपको कुछ पॉइंट दिए गए थे, उसको इस कार्टेशियन प्लेन पे सिंपली रिप्रेजेंट करना था, आपने बहुत ही आसानी से कर लिया था. लेकिन इस बार क्या है कि क्वेश्चन को आस्क करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी आपको ऑर्डिनेट दे दिया गया, आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है. तो अब क्वाड्रेंट भी आप जानते हैं, जैसे कि शुरू में हमने आपको नहीं बताया, लेकिन ये जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. अब कोई पॉइंट, ठीक है, जिसका आपको कोऑर्डिनेट पता हो, ठीक है, वो किस जो है किस क्वाड्रेंट में हो, ये बात कैसे पता चलेगी. तो इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, सिंपली इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि किस में वो पड़ रहा है. तो जैसे मान लिया आपके पास आ गया -3 और 2. सपोज ये कोई पॉइंट है A, -3 एंड 2 इसका जो है कोऑर्डिनेट है. तो ये किस क्वाड्रेंट में है,
हाउ कैन यू फाइंड इट? तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको बनाना है, देखिए एक्स एक्सिस पे -3 की तरफ जाना है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जाना है। तो ये एक्स एक्सिस बेटा जब इधर तो -3 है नहीं, इधर तो पॉजिटिव नंबर, तो इधर -1 -2 -3 यहाँ आ गया। अब वाई एक्सिस पे कितना जाना है, +2 जाना है, यानी ऊपर की तरफ जाना है, 1 2 यहाँ जाना है। तो ये जो पॉइंट पड़ रहा है यही तो -3 2 है, और ये किस में है बेटा, सेकंड में। तो योर आंसर इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, सिमिलरली इफ यू हैव -2 -4 -5, लो अब इसको क्या करना बेटा, -3 एंड -4 है, -5 है, इसके लिए आप क्या करेंगे, -3 आप जाएंगे एक्स एक्सिस पर, पहले एक्स एक्सिस चलना फिर वाई एक्सिस चलना ऑलवेज। तो एक्स एक्सिस -3 1 2 3 सॉरी 1 1 2 -2 चलना है। उसके बाद वाई एक्सिस पे जाना, तो वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस कितना है, -5 जाना है। -5 देखिए नीचे की तरफ है, देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएंगे और -5 देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो किस में बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी अगर पॉइंट दिया रहे, आपको कोऑर्डिनेट बता रहा है, पूछ रहा है, तो आप उसको बता लेंगे, ठीक। नेक्स्ट बेटा एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। जैसे मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया और पूछ लिया गया कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, विच पॉइंट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया और कुछ यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए। ए मान लो आपका 3 2, ये आ गया -3 -2, यहाँ पे आ गया बेटा -3 2, यहाँ पे आ गया 2 -3, ठीक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आपको क्या करना है, सिंपली कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होने के लिए क्या चाहिए आपको, देखिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ए में बेटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव जाता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव जाता है, यूनिवेरिएबल। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस होता है तो पहले माइनस होता है, बाद में ये ऊपर जाता है तो पॉजिटिव जाता है, ठीक है। थर्ड में बेटा निगेटिव होता है, क्योंकि इधर भी निगेटिव है, नीचे की तरफ भी निगेटिव है। लेकिन फोर्थ में पहले तो हमेशा आपको एक्स एक्सिस चलना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस देखिए पहले पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, और वाई एक्सिस निगेटिव है इधर, ठीक है, तो यहाँ निगेटिव लिखेंगे। यानी जिसमें पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव है वही फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले पॉजिटिव, देखिए पहले पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव निगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव निगेटिव किस में है, पॉजिटिव निगेटिव इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। इसको आप केवल याद, पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद भी हो जाएगी अगर आप ऐसे बनाएंगे। तो इसे इधर वाला प्लस में लेते हैं, फिर ऊपर वाला प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं। इससे भी आप बता सकते हैं ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस क्यों, अच्छा गलती से इसको प्लस माइनस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं फिर वाई एक्सिस पे चलते हैं। एक्स एक्सिस वाला इधर निगेटिव है, इधर जो है वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेटा तरीका है सॉल्व करने का। इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इस तरह से पूछ लिया गया, आपको ये दे दिया गया, या मान लो ये दे दिया गया, ये पूछ लिया गया किस क्वाड्रेंट में। तो इसका देखो दोनों देखिए, ये -3 है, ये +2 है। तो -3 और प्लस किस में है, तो पहले माइनस है बाद में प्लस इसमें है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किसका बेटा, ये सेकंड में पड़ेगा। ये वाला आपका इसमें फोर्थ में पड़ रहा था, फोर्थ आपसे पूछा था, आपने ये आंसर बताया था। लेकिन अगर ये दे दिया गया और पूछ लिया गया किस क्वाड्रेंट में है, तो आप इस तरह से बताएंगे, ठीक है, कि ये दूसरे में है, ठीक। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे बच्चे एक होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले कौन से पॉइंट हो सकते हैं, इसको हमें बताना है। तो जैसे मान लिया ऑप्शन ए है, सपोज दैट 3 2 है, ठीक है, -3 2 है, तो बी, या सी है 0 3 है, या डी है 3 0 है। अब ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये बताना है।
तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से कोऑर्डिनेट बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए पहली बात तो जिसमें दोनों नंबर में से कोई भी जीरो नहीं है वो किसी भी एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, वो क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ये 3 2 है तो इधर से आप 3 जाएंगे, फिर इधर 2 जाएंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ये -3 2 है तो माइनस पहले आप इधर जाएंगे, फिर 2 इधर कहीं जाएंगे ऊपर तो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये तो एक्सिस पे लाई ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों तो आपको ऐसे देखते ही आपको कट कर देना है, ठीक है। बचा 2 ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन को आप इसको रिप्रेजेंट करके चेक करेंगे कि ये किस एक्सिस पे हैं। तो देखिए पहला वाला क्या है, 0। पहला देखिए जो एक्स वाई ऐसे लिख लीजिए, तो जो एक्स एक्सिस पे जाना 0 जाना है तो यहाँ पे 0 जाना है, फिर वाई एक्सिस पे जाना है, वाई एक्सिस पे कितना जाना है 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट यही मिल जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 3 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये पॉइंट तो यही बेटा, ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों यहाँ पे वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको 0 जाना था, ना इधर जाना ना इधर जाना है, आपको यहीं रहना है। फिर आपको वाई एक्सिस पे जाना कितना 3 जाना है, 3 1 2 3, तो ये कहाँ पे आ गया, ये तो एक्सिस पे लाई कर रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो एक्सिस पे है, ठीक है। इसी तरह से अब डी को चेक करिए, अगर ये वाई एक्सिस पे है, आपको एक्स एक्सिस पूछा है, तो अब कोई ऑप्शन सही नहीं, तो यही सही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप इसको भी चेक करिए, ठीक है। तो इसको आप चेक करेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बेटा कितना चलना है, ये एक्स एक्सिस पे 3 चलना है, वाई एक्सिस पे 0 चलना है, तो 1 2 3 आपने चला यहाँ पे आ गए, और वाई एक्सिस पे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी यहीं रहना है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, आप एक्स एक्सिस पर ही हैं, तो एक्स एक्सिस पे बेटा 3 0, दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व द सच प्रॉब्लम, ओके। सो you can note these questions, okay. So let's take some other questions related to this, okay. For example, which of the following point lie on y axis। अब इसमें बताना बेटा वाई एक्सिस पे कौन कौन से लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके 6 3 0 5 3 0 या 8 0 लिख लिया हमने, 8 नहीं, यहाँ पे हम कुछ छोटा नंबर लिखते हैं, है ना, 2 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पे -6 -3 लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही है, चलिए करके बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर जो भी है आप इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लाई ऑन द वाई एक्सिस, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी तरह से बच्चे एक ऑप्शन और मैं दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये भी बताना आपको, विच ऑफ द following lie in third quadrant, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा लाई कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं दे दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए मान लो दे दे रहा हूँ 2 2, ऑप्शन बी -2 -3, ऑप्शन नंबर सी है 2 -3, ऑप्शन नंबर डी है -3 5, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, इसको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए आपसे, इस सबको करिए, ठीक। और उसके बाद अब चलते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही बनते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन अगर बनाने होते हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप जानेंगे वो भी आपने अभी भी सीखा है, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में आपने जाना है, आपने ओरिजिन के बारे में जाना है, ओरिजिन क्या होती है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। बेटा लाइट की कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे ये वीडियो यहीं पे क्लोज करनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन, ओके, थैंक यू सो मच।